So here I am going to discuss section A. Okay. So section A का पहला जो क्वेश्चन वो ये है, a particle of mass m and charge q starts from rest and moves in an electric field. इसका वैल्यू है E is E naught I cap. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है it is directed along positive x axis. After traveling a distance x in the field along the x axis, the kinetic energy of the particle will be. You are given four options. Okay. So the main point is the particle starts from rest. Okay. So if the particle starts from rest, the initial kinetic energy will be zero. Okay. And the final kinetic energy is something we don't know. Okay, we have to find out. So we know work done is equal to change in kinetic energy, that is equal to k final minus k initial. Okay, k initial being 0, k final minus 0. So k final equals the work done, which is equal to q times of E naught into x. Okay, so it is option B. Option B is the correct answer. Second question, a square loop of side 50 centimeter. This is quite confusing because I've done it, but the options are not coming up. So you try to do it and tell me if you get the options. A square loop of side 50 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 3 Tesla acting perpendicular to the plane of the loop. Okay. If the loop is rotated through an angle of 90 degree in 0.3 seconds, okay, find the value of the induced EMF in the loop. There are four options which are given to you. So I have solved it. So you see how to do. Option B. Question number B. So we know magnetic flux delta phi is equal to B dot A. Okay. B is 3 Tesla. 3 dot A. So it is, sorry. So it is BA cos 0 minus cos 90. Okay. Because it rotates from 0 to 90 in the given time is 0.3 seconds. So B is 3. A is given as 50 centimeter in CGS. You have to convert it into SI units. Okay. So it is it is square loop. Okay. So it is 0.5 meter the whole square into 1 minus 0. So the answer comes out to be 0.75 Weber. If you try to solve it, okay. Then induced EMF is mod of E is equal to delta phi by the time in which this change in the flux occurs, delta T, which is equal to 0.75 by 0.3, that is approximately 2.5 volt. But unfortunately, I don't have the answer. Okay. Next question is, a plane EM wave travels through a medium and the magnetic field associated with it is given by B is equal to 5 into 10 raised to minus 8 sine 3 into 10 raised to 10 t minus 150x. Okay, Tesla, where x is in meters and t is in second. You have to find the velocity of the wave. So हमको बताइए, तो ये wave का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है. वेलोसिटी ऑफ द वेव को कैसे दिया जाता है? ओमेगा बाई के. ठीक है. तो ओमेगा बाई के में ये ओमेगा ये जो है ना, ये किस फॉर्म में है? b इज इक्वल टू b नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. अब यहाँ पे टी का कोफिशिएंट ओमेगा, टी का कोफिशिएंट ये है 3 into 10 to the power 10 का वैल्यू ओमेगा है, 3 into 10 to the power 10 by k. k का वैल्यू कितना है? 150. So if you solve it, you are going to get the answer is 2 into 10 to the power 8 meter per second. So that's the question. That's the answer. So option A is the correct answer. Okay. Next question is very interesting. A thin plano convex lens. ये हो गया. ठीक है. अब मैं रफ कर देता हूँ इनको. By the way, the question was very good. Okay, such questions are welcome. It is less hard than the previous year question. Last year में जो question था वो थोड़ा इससे ऊपर लेवल का था. इस बार ये मॉडरेट लेवल का. ये we welcome this set. Question number 4. Question number 4 में क्या है? ऐसा अगर एक फिगर है, ठीक है. So
A thin plano-convex lens and a thin equiconcave lens are kept coaxially in contact. ये है plano-convex lens और ये है equiconcave lens, and they are kept coaxially in contact as shown in the picture. Assuming both the lens to be made of glass of refractive index mu and radius of curvature r, सबका इन सर्फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r है. You have to find focal length of this combination. इसका और इस ये लेंस जो है ये प्लेनो कॉन्केव लेंस, सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये है इक्विकॉन्केव लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स और इक्विकॉन्केव लेंस का आपको फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन ढूंढना है. ठीक है, ये इजी है. हम लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं. 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी. इस सरफेस का इंफिनिटी लेंगे प्लेन सरफेस का, और इसका तो हमने r ले लिया, तो कितना हो गया ये म्यू माइनस 1/r. ठीक है, तो इसको f1 बोल दो. अब हम नेक्स्ट इक्विकॉन्केव लेंस का हम फोकल लेंथ निकालते हैं. 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. म्यू माइनस 1 इसमें भी क्यों, बिकॉज ग्लास जो है इट इज एज पर द क्वेश्चन इट इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू 1 इसका हो गया माइनस r और इसका हो गया r. तो इसका कितना हो गया, अगर सॉल्व करेंगे तो हो गया ये, तो माइनस म्यू माइनस 1/r इतना हो गया. ठीक है, माइनस 1 ये अभी 2 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, अब फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. अब इसका कितना होगा, म्यू माइनस 1/r प्लस minus 2 times of mu minus 1/r. If you solve it, you will get as minus r by mu minus 1. ये f हो गया, ये f हो गया. सो ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. अच्छा, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वही है कि द क्वेश्चन नंबर 5, the phase difference between the two superimposing waves that give rise to a bright spot in YDAC is option. There are 4 options. ऑप्शन पहला ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए 2n pi. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A telescope has an objective lens of focal length 144 cm and an eyepiece of length 6 cm. Okay, the magnifying power and length of the telescope tube will be कितना होगा. ये टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. क्वेश्चन नंबर 6, मैग्निफिकेशन गिवन बाय टेलीस्कोप इज f नॉट बाय fe. ठीक है, तो f नॉट का वैल्यू है 144 और fe का वैल्यू है 6, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो आगे 24. एंड लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्यों हमेशा कितना होता है, f नॉट प्लस fe. f नॉट का वैल्यू है 144, fe का वैल्यू है 6, तो कितना हो गया 150 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोटल इंटर रिफ्लेक्शन डज नॉट occur. ऑप्शन नंबर ए दे हैव ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ऑप्शन नंबर बी है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स. ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल फेवर, और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म. अब देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ना, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. ठीक है, तो ये टीआईआर की वजह से नहीं होता. ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स इज ड्यू टू टीआईआर. ऑप्टिकल फाइबर में वो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये it works on the principle of total internal reflection, and reflecting prism also uses TIR. So the answer जो सही होगा वो है twinkling of stars. Okay, next question में चले जाओ. Next question number 8. Radiation of wavelength 200 nanometer is incident on a photosensitive surface of what function 4.2 electron volt. The kinetic energy of the fastest photoelectron emitted from this surface will be close to. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है. इसमें कुछ कैलकुलेशंस है, दैट इज व्हाई द पेपर गेट्स लेंथी एट टाइम्स. ओके, सो यू सी we have to use Einstein's photoelectric equation. Question number 8. Okay, question number 8. Einstein's क्या है, E is equal to K plus phi naught. Phi naught being the work function of the metal. Okay, phi naught का वैल्यू है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, फाई नॉट जो है वर्क फंक्शन का वैल्यू दे दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसके बाद में तुम्हारा
जो हाँ वेव लेंथ जो है ना वो मेन चीज बाकी है। वेव लेंथ में लिखा नहीं मैंने। वेव लेंथ है तुम्हारा 200 नैनोमीटर। सो वेव लेंथ इज इक्वल टू 200 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब स्टार्ट करो कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने के आगे ना हम एनर्जी का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। E इज इक्वल टू कितना है, hc/λ। एच का वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय ये लैम्डा का वैल्यू कितना है 200 इंटू 10⁻⁹। तो इसका वैल्यू जो है वो आएगा कितना 9.939 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 9.939 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको ना हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो वी नो ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसको हमको कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को। फिर क्या होगा 9.939 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू कितना आया 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यूज करो इस इक्वेशन को। सो therefore कि E माइनस फाइव नॉट, E का वैल्यू है 6.21 माइनस फाइव नॉट का वैल्यू है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर कितना आया, इट इज 2.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इट इज नियर टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल मोमेंटम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज EP by EA and de Broglie wavelengths associated with them lambda P by lambda A are respectively कितना होगा। ये दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये लगभग हर टीचर कराता ही करता है ये सब क्वेश्चन। एवरी टीचर डज दिस इन द क्लासरूम। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हेन यू गेट दिस क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, अब हमको ढूंढना है काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 9। ओके, अल्फा पार्टिकल ये अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को हम EA से नोट करते हैं p² बाय ट्वाइस m। ठीक है, p² बाय ट्वाइस m और ट्वाइस mp सॉरी ट्वाइस ma। और प्रोटॉन का जो है वो होगा p² बाय ट्वाइस mp। इन दोनों का हम रेशियो ढूंढते हैं। देयरफॉर EA बाय EP इज इक्वल टू, प्लीज रिमेंबर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम सेम है, p² बाय ट्वाइस mp। सो इट्स m p बाय m a, राइट। सो अभी कितना हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ, सो EA बाय EP is equal to MP by 4 times mass of proton. Since mass of alpha particle is 4 times mass of proton, it is 1 by 4. अब हमको क्या बोला निकालने के लिए, EP by EA। ओ हम उल्टा कर दो, EP by EA is equal to 4 by 1। ठीक है, और हमको चाहिए कि लेमडा P by लेमडा A ढूंढे। तो लेमडा P by लेमडा A ढूंढने के लिए वही de Broglie wavelength का फॉर्मूला लगाओ। लेमडा इज इक्वल टू H by P by H by P, दोनों का वेवलेंथ मोमेंटम सेम है। तो आंसर क्या होगा 1। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C 4,1। नेक्स्ट नंबर 10, इफ R1 and R2 are the radii of atomic nuclei of mass number 64 and 27 respectively, then R1 by R2 is कितना होगा। ये बहुत, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। वी हैव ये न्यूक्लियर चैप्टर्स का है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, R is equal to R naught A to the power 1/3। A को क्या बोलते हैं, मास नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमको मालूम है ना R is equal to R naught into A to the power 1/3। R1 by R2 is equal to R naught cancel out, A raised to A1 by A2 whole to the power कितना 1/3। A1 का वैल्यू कितना है 64 by 27, 64 by 27 whole to the power 1/3। 4 cube by 2 sorry 3 cube whole to the power 1/3। तो आंसर कितना आ गया, R1 by R2 का आंसर कितना आया 4/3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखो, when a forward bias voltage, ये सेमीकंडक्टर्स चैप्टर का है, forward bias in a semiconductor diode is changed from 0.8 volt to 1 volt, the forward current changes by 2 milliampere। जब forward bias condition में in a semiconductor diode if the current is changed from 0.8 volt to 1 volt, the forward current changes by 2 milliampere, the forward bias resistance of the diode will be, क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डेल्टा वी ये जो है ना, इट चेंजेस फ्रॉम 0.8 वोल्ट टू 1 वोल्ट। सो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, 1 वोल्ट माइनस 0.8 वोल्ट, इट इज 0.2 वोल्ट, ठीक है। देन डेल्टा आई, जब ये चेंज ऑफ वोल्टेज हो रहा है तब करंट का चेंज कितना था, 2 मिली एम्पियर। सो दिस 2 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस कितना होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी का वैल्यू कितना है, 2 into 10 to the power minus 1, और आई का वैल्यू कितना है, 2 into 10 to the power minus 3। सो ये हो गया 10 स्क्वायर ओम, बोल तो 100 ओम। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस named minority carrier injection in a PN junction diode occurs during option A forward biasing, option B reverse, option C no biasing at low temperature, option C no biasing at high temperature। आंसर इज इट इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली थ्योरी से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग। नेक्स्ट जो है ना वो है assertion reasoning। सो assertion reasoning में क्या पूछा गया है, assertion क्या है, in a Wheatstone bridge if you interchange the position of cell and galvanometer the balance condition remains unchanged। रीजन क्या है, अगर आप इक्वेशन पी बाई क्यू इज इक्वल आर बाई एस को क्यू बाई एस और पी बाई आर करते हो तो बैलेंस कंडीशन रिमेन द सेम। ये इफ यू चेंज द बोथ आर करेक्ट, ओके, एंड इफ यू चेंज द सेल एंड द गैल्वेटर, इंटरचेंज करते हो ना उनके पोजीशन, कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। सो इट रिमेन द सेम। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाओ। एस्टर्न क्या बोले, द सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेटर नॉट ओनली मेक्स द मैग्नेटिक रेडियल एंड डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ये देखो ये क्या बोल रहा है, सिलिंड्रिकल आयरन कोर जो है ना, इट ओनली मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, ये बोल रहा है। बट इन द कंटिन्यूइंग लाइन इट इज देयर, इट इज सेइंग इट डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये गलत है, बिकॉज सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ये जो है ना असर्शन गलत है। अब रीजन में चले जाओ। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेटर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक। मूविंग कॉइल गैल्वेटर में एरिया वेक्टर जो है ना, इट इज परपेंडिकुलर, प्लेन नहीं, प्लेन तो रियल लाइन के पैरेलल में है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में चले जाओ। फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। एंड रीजन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये मतलब दिस इज बट assertion जो है ना, it is not related to radiation, is not related to reason here, okay। So option B is the correct answer. Next question number 16, nuclear forces are attractive, the nuclear forces between reason क्या है, the nuclear forces between proton and neutron is a the nuclear force between proton and neutron is a weak force। assertion क्या है, nuclear forces are always attractive। option reason क्या है, the nuclear force between proton and neutron in a nucleus is a weak force। अब इसका क्या बता है, nuclear force are attractive when distance between the nucleus is within a certain range and they can be repulsive at short distances। अब रीजन में जो बोला है ना उन्होंने कि nuclear force between proton and neutron is a weak force, no, it is a strong force। so ये ऑप्शन डी is the right answer, वो दोनों ही गलत है, ठीक है। so here we complete set A, okay। in the next video we are going to do set B, okay।